guys. Yes, Deepika, I'm here. Can My I? surname Oh, Patel. Okay, what is the surname, Nisa? My surname is Patel. My verb is Uh, Wait a minute. Uh, Nisha Patel. Your verb is देखभाल करना. That is care, cared, cared. And you have to make two sentences. One is from present simple and second one is from past simple. Okay. Nisha Didi, please. She left. can I make? Okay, who is ready? Who is ready? Neha Didi is I am ready. ready. Okay, after you, Neha. My verb is intend. Na? I intend to win. I intend to win football match. मैं फुटबॉल मैच जीतने का इरादा करती हूँ. I intended to win football match. मैंने फुटबॉल मैच जीतने का इरादा किया. And who is ready? Who is ready? We all are done, na? It's Namrata's goals, na? They get success because they comprehend every relation. Okay. वे सफलता पाते हैं क्योंकि वो हर लेसन को, हर पार्ट को अच्छे से आत्मसात करते हैं. मीन्स दे कॉम्प्रहेंड द लेसन वेरी नाइसली. बहुत अच्छे तरीके से आत्मसात करते हैं. दे गॉट सक्सेस बिकॉज दे कम्प्रहेंडेड लेसन वेरी नाइसली. वह बहुत अच्छी तरीके से पार्ट का लेसन्स को कॉम्प्रहेंड करते थे सफलता पाने के लिए. टू गॉट सक्सेस. Namrata. माय फर्स्ट सेंटेंस वाज वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वह हर लेसन को बहुत अच्छे से आत्मसात करते हैं. ठीक है. Your verb is सेकंड इज दैट कि comprehend, वो na? कॉम्प्रीहेंड. वह बहुत अच्छे तरीके से वह सक्सेस होते थे क्योंकि या वह सक्सेस हुए क्योंकि वह लेसन्स को बहुत अच्छे से कॉम्प्रहेंड करते थे. They got success because they comprehend the lesson very nicely. वे सफल हुए वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपना उन्होंने अपना पाठ अच्छे से आत्मसात किया. हाँ, because they comprehended their lesson very nicely. Didi, make it like they comprehend all the things and all the lesson very well, so they get success. Because your verb is comprehend, not get success. I used both. I make two sentences. No, And I know you are making two sentences, but when you are starting with they get success, so your main verb is like get success. But is your it verb wrong? is no. But Okay, simply I cannot make a very useful sentence. No, that's why I have taken this okay. You are verb means in you are second. changing the verb.
You are changing the verb, so it is good. No, You I, make. I am not changing the verb. I used comprehend. Comprehend in a present indefinite tense. Are you getting my point, Sivang? Sorry, I am not getting your point. What do you want to say? Please tell me. I am just saying that your verb is comprehend. So, Yes. if I am making the sentence with my verb, so I am putting the verb firstly, then I put another verb. Firstly, I Okay, put you my mean कि main I verb, should keep which I get. the verb? Okay, you mean the verb which is given by Deepika, I should keep first sentence, है ना? But I don't think so. It is compulsory. Okay. इस सेंटेंस को पलट दूंगी और क्या? Okay, who is ready? Nidhi, are you there? Nidhi Patel. I am. Yes, I am dressed as Deepika. Okay, your verb is knocked down, knocked down, knocked down. That is harana. Okay, I'm ready. With I suck my hubby's blood. मैं मेरे पति देव का खून चूसती हूँ. I sucked my hubby's blood. मैंने अपने पति देव का खून चूसा. Happy now? Yes. Are you happy? God. No, actually, it was his intention. And I want to tell you, Deepika, while distributing the verbs, do not give option to the others. नहीं तो इससे एक नई और गलत परंपरा शुरू हो जाएगी. For a little while, for fun, it is okay, but it is not okay always. अगर आप क्रिया डिस्ट्रीब्यूट करते समय दूसरे को ऑप्शन देंगे तो वो, क्योंकि empty mind is devil's workshop. Is network okay, guys? Because everybody is closed. Yes, sir. It is okay now. But nobody is visible. That's why I'm asking. Sir, am I not visible? Namrata, you are not visible. Deepika is visible. I think. Sir, but my camera is on. Okay, now you are visible. Deepika is not. Okay, it is, I think, slow network. Sometimes it happens because of slow network. No problem. तो कल से जो भी वर्ब डिस्ट्रीब्यूट करे वो ऑप्शन दूसरे को कतई ना दे. जो भी सीक्वेंस में वर्ब चल रहे हैं वही दे. चलिए दोस्तों, एक बार और थोड़ा सा रिफाइन करते हैं आपके वाक्यों को. लेट्स रिफाइन योर सेंटेंसेस. Firstly, tell me who made the first sentence. Sivang make the first sentence. Sivang made the first sentence. अब हिंदी ध्यान से सभी लोग सुनिएगा. नम्रता, पहला वाक्य किसने बनाया बनाया था? सर, पहला वाक्य शिवांग ने बनाया था. गुड. अभी सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है आप सबके साथ, उसी के समाधान के लिए ये प्रोसेस है. आप लोगों के जहन में राधा ने जो आपको पास्ट सिंपल सिखाया है थोड़ा बहुत, वो काफी गहरा बैठा हुआ है. और आप लोगों के कई लोगों के मुंह से ताथा निकलता है तो पास्ट सिंपल देते समय, और उसके बाद भी मैंने एक दो बार आपसे ऐसा इशारा किया कि अगर आपको ताथाथैया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी आदि नृत्य सीखना है तो आप
नृत्यशाला जाइए। अब देखिए, हम और नम्रता अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इसमें कहीं ताथा नहीं आया। हम फिर से पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नम्रता, हु मेड द फर्स्ट सेंटेंस टुडे? सर, शिवांग मेड द फर्स्ट सेंटेंस टुडे। आज पहला वाक्य किसने बनाया था? सर, शिवांग ने आज पहला वाक्य बनाया था। दिस इज प्रैक्टिकल हिंदी बच्चों। चलिए हम अभी एक एक करके सभी के वाक्य को थोड़ा ब्यूटिफाई करते हैं। शिवांग, स्पीक योर सेंटेंस प्लीज। सर, आई स्मोक ब्लैक। मैंने हिंदी ऑल्सो सर। मैंने ब्लैक पी। मैंने ब्लैक पी। फिर मैं ब्लैक पीता हूँ। हाँ, ये जो कंफ्यूजन हो रहा है शिवांग को नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको भी हो रहा है बिकॉज काफी दिनों से प्रैक्टिस छूटी हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मेंशन करना चाहेंगे दोस्तों, स्पेशली शिवांग। शिवांग, दिस इज द बैच ऑफ लेडीज। तो सेंटेंस बनाने के दौरान तुम हिंदी में कुछ चीजें स्पष्ट कर दिया करो। मैं पहले कर दूं। दोस्तों, ब्लैक एक सिगरेट का ब्रांड है और उसका सिंगल नाम ब्लैक नहीं है, उसका पूरा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं है। तो ऐसे शुरू में अगर व्यक्ति बोल दे कि दिस इज सिगरेट, तो वो क्लियर होगा। रिपीट योर सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस शिवांग। सर, बिकॉज ऑफ नेटवर्क आई कांट हेयर यू। वेरी प्लीज गुड। कैन यू कम अगेन? My network is. I lose my network a little bit. When you are speaking, I lose my network. I was just suggesting, and I cannot repeat it. You just repeat your first sentence. So my first sentence is I smoke black. It is Correct. my first sentence. Complete the process. मैं ब्लैक पीता हूँ। Correct. Speak the second one. I smoked black yesterday. मैंने कल ब्लैक पी। दोस्तों, कोशिश कीजिए आपके दूसरे वाक्य में समय आए, कोई ना कोई समय आए। ये ग्रामर में बहुत काम में आएगा। टीचर्स पूछते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि पास्ट सिंपल, बल्कि ये व्याकरण का नियम जहन में बैठा लीजिए। पास्ट सिंपल में समय का उल्लेख होता है तो वो ज्यादा उचित माना जाता है। His both sentences are correct. Shivang, who made sentence after you? After me, Neetaji made the sentence. अब इस सेंटेंस को ऐसा बोलना चाहिए, सब्जेक्ट पहले लें, नीताजी मेड सेंटेंस आफ्टर मी। दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। तुम्हारे बाद वाक्य किसने बनाया था? सर, मेरे बाद नीताजी ने वाक्य बनाया था, बट नीताजी, सबसे पहले नीताजी ने बनाया था। नीताजी प्लीज unmute yourself and be visible. Sir, Okay, I'm repeat not your. clear. Yes, sir. I Now you are. identify the medicinal plants regularly. मैं नियमित रूप से औषधीय पौधों की पहचान करती हूँ। इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी मैं बढ़ाता हूँ, हाँ। बोलिएगा मेरे साथ। I I, as a scientist as a scientist, identify identify the medicinal properties the medicinal properties of of plants. plants. अब हिंदी आप स्वयं बोलिए।
एक वैज्ञानिक के तौर पर मैं औषधीय पौधों की पहचान करती हूँ। Absolutely nice. Now speak second sentence. I recently identified as a scientist the medicinal plants properties. Your sequence is wrong. मेरे साथ बोलिए. I, as a bioscientist, as a bioscientist, recently recently identified identified the miracle the miracle property of properties of aloe vera. properties of aloe vera. Property of aloe vera. Okay, property of aloe vera. एक अब हिंदी भी मेरे वैज्ञानिक, साथ बोलिए. जी सर, एक वैज्ञानिक के तौर पर एक वैज्ञानिक के तौर पर हाल ही में मैंने एलोवेरा के चमत्कारिक गुण की पहचान की. यस सर, चमत्कारिक गुण की पहचान की. अब यहाँ पे की पे आके फुल स्टॉप लग रहा है. इसको सभी लोग ध्यान से सुने. लिखा आप सबके सामने है. जब आप वाक्य बनाए तो प्लीज उसको खोल के सामने रखें. गया, खाया, पिया, सो ऑन है. तो सो ऑन में आपको थोड़ा सा अपनी हिंदी मातृभाषा को सम्मान देना है. और जो उचित, जैसे उसने चाय पी, अब उसने चाय पिया अगर बोल देंगे तो कितना खराब लगेगा. उसने चाय पिया, नो, उसने चाय पी. नीता जी, हु मेड सेंटेंस आफ्टर यू? कोई का भी नाम ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि सही. सर, दीपिका मेड सेंटेंस आफ्टर मी. करेक्ट. अब दीपिका ने जो अभी अभी सेंटेंस बनाया वो बहुत ब्यूटीफुल थे, डेयरिंग थे, और उसकी मनोवृत्ति को भी संतुष्टि मिल गई होगी शिवांग की. एक सेंटेंस था उसमें हम सब कंफ्यूज भी हो रहे थे सर. मेरा ही सेंटेंस था, मॉस्किटो सक माय ब्लड एवरी डे. मैं बताता हूँ इसका कारण. शिवांग जो जिरह कर रहा था उसमें कुछ तो अनावश्यक रूप से था, लेकिन दूसरा उसके पीछे उसका उद्देश्य था कि अब सर ने बोला है कि आप आई का प्रयोग करें. यू वर हेजिटेटिंग टू यूज आई, दैट्स व्हाई ही वाज फोर्सिंग यू, एंड फाइनली यू फुलफिल्ड हिज डेविल इंटेंशंस. और अंत में तुमने उसकी राक्षसी मनोवृत्ति को पोषित कर दिया. He became very happy. देखिए, एक्चुअली राक्षसों के या डेविल्स के कोई सींग नहीं होते. उनकी पहचान मनोवृत्ति से होती है. व्यक्ति विशेष की पहचान उसकी मनोवृत्ति से होती है. तो कोई बात नहीं, इट्स ओके. He wanted you to use I as a subject, and did you notice he took so much time to select the verb to give you? उसने तुम्हें वर्ब देने में बहुत समय लगाया. उसने पूरे पेज पलटे और शैतानी दिमाग में आया कि दीपिका दीदी को ये वर्ब दी जाए, फिर मजा आएगा. इंटरैक्टिव से निकाल के, हाँ, इडियम से निकाल के. ये डिस्ट्रैक्टिव मेंटेलिटी कहलाती है. लेकिन आज हमारा युवा एक्चुअली जिस वो एज में है, ये जो उम्र है, इसको अगर मैं हिंदी में कहूं तो बागी उम्र कहलाती है. इस समय बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हमें विरोध करना, सताना, हर चीज, क्योंकि इस उम्र में एक युवा को लगता है कि ये समाज मेरी जान लेके रहेगा. ये मत करो, वो मत करो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ.
ये मत देखो, वो मत देखो, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसका जो दिमाग है वो बागी हो जाता है। ये उम्र ही ऐसी है, और इस समय सारे विचार जो आते हैं वो शैतानी विचार दिमाग में आते हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां इस उम्र में हावी होती हैं। तो वो ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये इसमें तुम्हारी भी एक गलती है। यू लेट हिम डू दिस, तुमने उसे ऐसा करने का मौका दिया। कल से जो भी वर्ब डिस्ट्रीब्यूट करो, डोंट टेक एनी बडी ग्रांटेड। हैव आई गिवन यू दिस इंटरेक्टिव? गिवन ना? हाँ। Yes, sir. नो, डोंट लेट एनीबडी टेक यू ग्रांटेड। इस सेंटेंस को लिखना हो तो लिख लेना, यहाँ पे प्रिंट तो हो ही गया है, वीडियो में भी है। डोंट लेट एनीबडी टेक यू फॉर ग्रांटेड, सॉरी हमने फॉर नहीं लगाया था। किसी को भी खुद को हल्के में ना लेने दें। जहां तक लाड़ प्यार की बात है वहां तक बात इट्स ओके। आप कंधे पे बिठा लो बच्चे को, लेकिन अगर वो कान में मूतने लगे तो एक घंटा आप दो उसको, उसकी इजाजत मत दो आप उसको। डोंट लेट एनीबडी डू इट। तो डोंट, you are distributing verb, you distribute the verbs. Don't say give me any verb. Okay, now let's come to Deepika, you have made nice sentences. Repeat all the 4 sentences. My next sentence is honeybee suck nectar from flower. Actually यहाँ एक ग्रामेटिकल पैच भी है। क्रिया में यहाँ s लगेगा। Did you put s? सक्स लगेगा। Yes, sir. इसलिए मैंने रोक के रखा है, तुम लगा दो, इट्स ओके। और इसका पास्ट मैंने बनाया था, I saw honeybee sucked the sweet juice from the flower. It is correct. Complete the process. मैंने देखा मधुमक्खी फूलों का मीठा जूस, मधुमक्खी ने फूलों का मीठा जूस पिया। Good. Who made sentence after you? As far as I think, Neha made sentence after me, sir. Okay. It is not necessary. It is just for questioning. अब हिंदी भी सुनना। आपके बाद वाक्य किसने बनाया था? सर, मेरे बाद वाक्य नेहा ने बनाया था। नेहा, speak your first sentence. My first sentence, I intend to speak English regularly. हाँ बेटा नेहा, पहले तो सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करो, जो अगर कोई रोज इंटेंड कर रहा है, रोज इंटेंड रोज की जाने वाली क्रिया नहीं है, है ना? आप रोज इरादा करते हो फिर दूसरा कर लेते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये रेगुलरली की जाने वाली क्रिया नहीं है, लेकिन अब प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस बनाना है, तो चलो हमारे साथ बोलो। I intend to अच्छा, इसको हम समझ गए, लेकिन इसको थोड़ा सिंक्रोनाइज करो, मतलब ना पूरी तरह सीसी पे डिपेंड करो, ना पूरी तरह लिसनिंग पे, दोनों के बीच को ऐसा बैलेंस करके चलो। अभी तुम सीसी मत देखना, केवल सुनना ध्यान से। Okay. I intend to do something different. मैं कुछ अलग करने का इरादा करती हूँ। अब इसी को तुम सीधे सीधे पास में बदलो।
I intend to अब different. पास्ट में जा रही हो ना तुम? I intended हाँ, to different regularly. चलो पूरा हमारे साथ बोलो। I I intended to do do something something different. different. मैंने मैंने कुछ अलग करने का इरादा किया। Who Thank made sentence after you? Thank you, Neha. Sir, I think Namrata Di made sentence after me. Namrata, are you done? यस सर। हमने तुम्हारे सेंटेंसेस ओके कर दिए ना? नो सर, आई एम नॉट डन Okay, विथ so सेंटेंसेस। please speak. Sir, my sentence was, I comprehend good things Complete the process. very nicely. मैं चीजों को बहुत अच्छे से आत्मसात नहीं सर, ये नहीं था एक्चुअली सर, मैंने राइट डाउन नहीं किया है, मैंने अपने मन से बोला था। No problem. Second sentence. मैं चीजों को आत्मसात करती हूँ, जबकि जब मैं स्कूल में थी तो मैं ज्यादा अच्छे से आत्मसात करती थी, ऐसा लिखा था। हाँ, ये हटाना है। देखो तिथि जो आया ना, इसको खुद हटाओ या फिर हम मदद करें। सर आई कॉम्प्रहेंड, ओके किया। मैं सोचती हूँ कि मैं अभी जो चीजों को आत्मसात करती हूँ, मैं स्कूल डेज में करती थी। ये फिर से क्या तिथि किया सर? किया। स्कूल के दिनों में आत्मसात किया। यस, करेक्ट। या किया था, किया या किया था। चलो ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ और स्वयं देखना। नम्रता, what did you comprehend today? Sir, I comprehend many things today. Come again. What did, sir? दीपिका इशारा कर रही है ऐसे। Sir, I did. Okay, Deepika, what did you comprehend today? Wait, no problem. Sir, I comprehended many things today. आज आपने क्या आत्मसात किया? सर, आज मैंने बहुत सी चीजें आत्मसात की। अब तुम सेम क्वेश्चन नम्रता से करो, पूरा राउंड खेलते ऑब्जेक्ट बदलते जाना। I जाना। also used the second form of the verb. I comprehended. देखो, अब यहाँ समस्या ये है कि वॉइस शॉपिंग हो जाती है और कभी कभी राइटिंग भी गड़बड़ होती है। हमने तुमसे पूछा था नम्रता, तुम्हारा ये जो नेक बैंड है सेम कंपनी का है क्या मोबाइल? नो सर, इट इज नॉट कंपैटिबल। लेकिन सर जो इसका है वो और भी कंपैटिबल नहीं है, उसमें और दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं ये यूज करती हूँ। एक आध बार विदाउट नेक बैंड के तुमने क्लास की क्या? हाँ सर, की है, तब तो सही रहता है। तो वही करो लेकिन ना। मुझे डिस्टर्बिंग की वजह से मैं नहीं करती हूँ। अच्छा, ठीक है। सेम टाइम सर बात करने का। ओके, दीपिका आज द सेम क्वेश्चन टू नम्रता। सभी लोग बच्चों ऑब्जेक्ट बदलना कुछ अच्छा सा सोच के रखो, भले ही वो हिंदी का शब्द। दीपिका। Namrata, what you comprehend? सॉरी
ओके निधि, यू आस्क somebody else. नीता जी से पूछो निधि. Neeta ji, what did you comprehend today? Nidhi, I comprehended Hanuman Chalisa today. नीता जी, आज आपने क्या आत्मसात किया? निधि, आज मैंने हनुमान चालीसा को आत्मसात किया। नम्रता जी, what did you निधि, comprehend? नीता जी रुकिए रुकिए, ये नम्रता जी नहीं है अभी, और बहुत सारे जी बैठे हैं यहाँ पे. Okay. शिवांग, what did you comprehend today? I comprehended कबीर के दोहे today. शिवांग, आज आपने क्या आत्मसात किया? आज मैंने कबीर के दोहे आत्मसात किए. थैंक यू। दीदी, what did you comprehend today? I comprehended American Revolution today. दीदी, आज आपने क्या आत्मसात किया? मैंने आज अमेरिकी क्रांति को आत्मसात किया. नेहा दी, what did you comprehend today? I comprehended today Ramayana. I comprehended today. I comprehended Ramayana today. दी, आपने आज क्या आत्मसात किया? नहीं, मैंने आज रामायण आत्मसात की है. एक मिनट, निशा रिपीट हिंदी प्लीज. मैंने आज रामायण आत्मसात की. ओके, दीपिका दी, नहीं दीदी, what did you comprehend today? Neha, to whom are you asking? Me or Deepika? नहीं दीदी, what did you comprehend today? I comprehended today. Sorry, I comprehended all words meaning today. Sorry, your voice is echoing. Badly chopping. It is badly chopping. Badly chopping, yes. There is some kharkharahat. I comprehended all blackboard word meaning today. दीदी, आपने आज क्या आत्मसात किया है? Sir, you are mute. अरे भैया आगे बढ़ा दो यार, जान लोगे क्या बच्चे की. Okay. Neeta ji, what did you comprehend today? Neha, I comprehended Ved today. बहुत I दिन हो think गए. Neeta ji is हाँ, already done. दे रहे, वही दे रहे हैं. नेहा बेटा तुम मस्त 3 का दंड दो अच्छे से, और नीता जी आप भी 3 का दंड देंगी नेहा के बाद. राम किसको? मिलाई जोड़ी, एक कान्हा एक कोढ़ी. Sir, she asked me. That's why. You are done, na? Okay. So you want to say Sorry. I am done? अच्छा. She is. Okay. She asked. Okay, will not do, Neeta ji. You have to give a 3D. And Yeah. Neha, please start. Initiate your नेहा विल 3D. स्टार्ट.
Neha will give 3D later on. Neetaji will give 3D. Neha, break Break the the ice. ice. Break the ice. My leg is sleep. That is मेरे पैर में झुनझुनी पड़ गई है. आपका पैर सो गया? Come again. My leg is हाँ, sleep. come again. My leg is sleep. Come again. ये boy My leg is sleep. Sorry, Neha. बेटा तुम माइक कितना भी पास ले आओ, गलत तो गलत ही रहेगा. Okay, sir. फड़फड़ाओ करने फड़फड़ाओ. I mute. नीताजी तब तक आप म्यूट कर लीजिए. Good, एक मिनट. तो दो goodness. तीन तीन माइक ऑन है बेटा, रुको तो. हाँ, थैंक यू नीताजी. गो अहेड नेहा जी. Keep patience. That is धीरज रखिए. Goodness and ask. That is नेकी और पूछ. Practice makes perfect. That is करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान. Didi, and वेरी गुड next नेहा. when you give अब ये तो तुम्हें याद है तीनों, ठीक है. अब 3 देख के बोलो जो याद नहीं है. The boss is always right. That is राजा हमेशा सही होता है. Here we go. That is शुरू करें या शुरू करते हैं. He is tied up. That is वह फंस गया है. नीताजी, इट इज योर गो. इट इज योर गो. कोई हमने अभी देखा, निधि को पूरा लिख के दिया, सब समझाया, बोर्ड पे लिखा. इट इज योर गोज कुछ नहीं होता है भाई. इट इज योर गो डाउन है वहां पे. नीताजी, इट इज योर गो. Let bygones be bygones. बीती बाई बिसार दे आगे की सुधि ले. Second is crying in wilderness. भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए. And the third is if you want to do something best, do it yourself. बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता. Thank you, Neetaji. Mute yourself and listen. Neetaji, you have understood the purpose of punishment of this class. Only listen, do not respond. हिंदी में नीताजी, आप बहुत जल्दी इस क्लास में सजा का जो उद्देश्य है वो समझ गई हैं. इनमें से कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझे हैं. मुहावरे आपने लिख लिए हैं, अच्छी बात है. वो जुबान पे कैसे आएंगे, उसके लिए 3 का दंड, 6 का दंड, 10 का, 20 का. दिस इज एक्चुअली नाम बस इसका है सजा, लेकिन ये है आपके फायदे के लिए. इट इज फॉर मजा. लेकिन क्यों बेटा नेहा, ये एक छोटी सी बात समझ में आ रही है कि इतने बड़े बड़े मुहावरे, इसमें कठिन शब्द हैं, वो लिखे बैठी हो. सही बोल पा रही हो कि नहीं, ये तब पता चलेगा जब तुम उसको बोलोगी. और नीताजी ने बिल्कुल वैरायटी ऑफ इडियम का प्रयोग किया है. इसलिए हमने तुम्हें 6 का दंड दिया कि तुम उठा के वो 3 जो बिल्कुल यहाँ पे रखे हुए पट्ट पट्ट पट्ट, हर बार तुम वो 3 बोल देती हो. तो बेटा ये बात समझ में आ रही है कि जब तक बाकी इतने सारे लिखे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, तो क्या करोगे उसका? What will you do with that? Okay, do not respond, do not unmute yourself. Okay, now. सर डोसा के साथ खाएगी. Sir, नेहा डोसा के साथ today खाओगी I चटनी के want to साथ. give. No, I use always. सर आज 3 मीडियम सब लोग बोले ना, तो इस बहाने सबके मुंह से भी निकल जाएंगे. जिसके पास जो आज नहीं लिखा सबसे होगा. पहले देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने पेश है सेकेंड स्पीच. फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस बैच टू डिलीवर सेकेंड स्पीच ऑफ प्रेजेंट सिंपल. सभी लोग अपनी खिड़कियां खोल के रखना, माइक बंद रखना, और ताली बजाने के लिए माइक चालू कर लीजिए.
I would like to invite Mr. Shivang Dubey all the way from Patan. Thank you, sir. Hello, guys. This is Savang Dubey, and I'm from Patan. It is my second speech before you. I am Savang Dubey, and it is my daily routine, which I do in my whole day. Firstly, I wake up at 6 o'clock, and then I touch the earth, and I say that my today is am I doing anything? So please take it like free. Then I go to washroom. Then I have a brush my teeth. After brushing my teeth, I am just thinking कि I should also take shower. So I take shower after brushing my teeth. Thereafter, I come back to my room and I worship God. I worship 2 to 5 minutes only because I do my school work also. So after worship, I do. Hello guys, hello Fox. This is Savang Dubey from Patan. This is my second speech before you, and it is my daily routine. So let's break the ice. Firstly, I wake up at 6 o'clock. Sometimes I wake up at 7. When it is Sunday, I wake up at 7. After that, I go to washroom and I brush my teeth. After brushing my teeth, I have shower. After taking shower, I come back to my room. Then I dress up myself. I make my I dress my I wear my school uniform, and then thereafter I worship God. I worship 2 or 5 minutes only because I also do my school work. After worshipping, I do my school work. I done my homework. Uh, then I then at n- then 8 9 I went to school. After going I after going to school, I take my I go to school with my friend. When I reach school, I I go to my classroom and I put off my bag into my table. Then I come back to assembly hall. Then thereafter I do prayer. After doing prayer, some students give some good things and speeches. Teacher also deliver some speeches and give some knowledge, give some good things and knowledge. After the prayer, we go to classroom, and there are 3 periods in my school in every day. So first period is in maths. First period is maths, and next period is means so boring period because we do all the solution, and sometimes we don't know how to do it. So it's just a boring period for no not everybody. Sometime it is boring period for me. And thereafter, the period of physics, the physics period is good for me. The teacher teach physics means they do practical things. In physics, they do practical things and they tells how to correlate the physics to our daily life. If there is something in physics, so this is done in your daily life also. So the physics class, I love the physics class. Thereafter, the class of chemistry. In chemistry, there is one ma'am which take chemistry. So, like means today we go to means chemistry lab today.
So we do practical layer. Like today we do titration layer. So like there's titration of NaCl to find salt. So this today period is also good. Then the bell ring and I come back to assembly and do evening prayer. After doing evening prayer, I come back my home. Then I ring the bell. So mama said, "Who is there?" So I said, "It's me, mom." So mama opened door. Then I come to my room and I uh, put off my school uniform and wear my daily outfits. Then I have a meal. Then I have meal. In meal, I basically have dal chaman and roti. So because it is a meal of every home which make for everyone. Means dal chamal is making in every home. So I take my meal. After taking my meal, I do net surfing. It's like sometimes I watching the video of games. Sometimes watching the video of which is related to my study. Thereafter, I do my school work. After doing my school work, I go outside for wandering. After wandering, I am wandering for 5 to 10 minutes, or maybe it is 20 minutes because nowadays it is 12th. It is 12th. I am in 12th, so I can't wandering about 20 to 30 minutes. I wander only 20 to 30 minutes. After wandering, I come back my home. Then I do study. I do my school homework which I want to do, and after doing my study, then I means I have my uh, meal which I wanna which I wanna have. Which when I am taking meal, I also do net surfing. And I do net surfing after having meal. I means I बिछाना मैं अपना बिस्तर बिछाता हूँ. Then I put my books and take it in our means in their places. After that, it is 7 or 7:30. So the classes I take the classes of Jhasar from 7 to 8:20 or 8:30. In these classes, I feel relaxed. In means in 1 घंटा में I feel very comfort and very relaxed. Like I'm not having any type of stress of my study, any type of stress of my means this class. So I feel relaxed in this class. After doing this class, I take dinner with my family. Thereafter, I do my school homework, which I want to written in my copy. Like I want to complete my copy, so I complete my copy. If there are test in my school, so I wanna means study about the test. In which subject I am losing my in which subject I am weak, so I prepare the subject at means I study from 9 to 12. Then I go to my bed. So there. Thank you. दोस्तों विस्तृत रूप से मैं बाद में बताऊंगा रिव्यू. एक सेंटेंस में सबसे बुलवा लेता हूं अभी. जो इतनी देर से शांत है उनको मुंह से एक सेंटेंस भी निकल आएगा और वो स्पीच में भी काम में आ जाएगा. दीपिका, लिसन टू मी. Thereafter I lay my bed. तत्पश्चात मैं अपना बिस्तर लगाता हूँ या बिछाता हूँ, जो हिंदी बोलना चाहे आप. सेम सेंटेंस. Thereafter I lay my bed. उसके बाद मैं अपना बेड बिछाती हूँ. नम्रता. Thereafter I lay my bed. उसके बाद मैं अपना बिस्तर लगाती हूँ.
निधि, निधि पटेल। I think Nidhi is not here. Mini? Thereafter I lay my bed. उसके बाद मैं अपना बिस्तर बिछाती हूँ। नेहा दी। Thereafter I lay my bed. उसके बाद मैं अपना बिस्तर लगाती हूँ। नीता Thereafter जी। I lay, yeah. Thereafter I lay my bed. तत्पश्चात मैं अपना बिस्तर बिछाती हूँ। मिनी? Mini Didi is And done. then I am rest Okay. Didi. हाँ, शिवांग। Thereafter I lay my bed. उसके बाद मैं अपना बिस्तर बिछाता हूँ या लगाता हूँ। Is anybody rest, बच्चों? No. Yes, Okay. sir. Okay. अच्छा दीदी। Go ahead. Thereafter I lay my bed. उसके बाद मैं अपना बिस्तर लगाती हूँ। Who is rest? बच्चों, आप में से कोई भी जिसको याद रहे ग्रुप में एक रिमाइंडर डालिएगा मैडम को। मैडम देख लेती हैं कि ऑर्डर रिक्वेस्ट के आपको कितने सेंटेंस मिले हैं बच्चों, बताएं। नम्रता? सर ज्यादा नहीं थे, एक वीडियो मिला था स्टार्टिंग वाला। आप लोगों में से किसी ने नोट किया है अपने रजिस्टर में? प्लीज बताइए। नो सर। 20 से 30 सेंटेंस, 20 to 30। यस सर, अभी PDF टाइप आया है। हाँ बेटा, उसको जल्दी से नोट कर लो। उसमें स्पेशली महिलाओं से संबंधित बहुत खूबसूरत अच्छी अच्छी यूजफुल क्रियाएं हैं, मिलेंगी उसमें, जैसे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना और बहुत सारी क्रियाएं। तो वो तुम लोग को बहुत फायदा करेगा, उसमें से निकाल के अपने रूटीन में वो रखना। सर ये ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट वाला चैप्टर कहाँ पे नोट डाउन करेंगे? अगर हमने हेडिंग नहीं लिखवाई है तो कोई बात नहीं, ये आमतौर पर शुड के बाद कहीं पे भी नोट कर सकते हो, और जगह ना हो तो अपनी सुविधा के हिसाब से नो प्रॉब्लम कहीं पे भी नोट कर लें। एक सेंटेंस और हमारे साथ बोलेगा। दीपिका एक्चुअली लेफ्ट। आई एम स्टार्टिंग विथ नीता जी। आफ्टर टेकिंग शावर आई वर्शिप। नहाने के पश्चात मैं पूजा करता हूँ। बोलिए नीता जी। आफ्टर टेकिंग शावर आई वर्शिप। नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ। निधि? निधि नहीं है, मिनी तुम बोल दो। हाँ, मिनी। आफ्टर टेकिंग शावर आई वर्शिप। नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ। नम्रता दी। नेहा बेटा तुम बोल दो। आफ्टर टेकिंग शावर आई वर्शिप। नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ। नम्रता जी। आफ्टर टेकिंग शावर आई वर्शिप। पूजा करने के बाद, सॉरी, नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ। बच्चों ये आफ्टर एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, और अगर हमें वर्ब रखना है तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाती है। रिक्शे वाला भी बना लेता है, एक कहानी सुनाई होगी हमने, और नहीं तो मैं फिर से सुना दूंगा वो कहानी।
दोस्तों, बहुत से लोगों को डेटा प्रॉब्लम होती है, तो दे आर ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड. वी आर कंक्लूडिंग द क्लास हियर टुडे. गुड नाइट, शब्बा खैर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सी यू टुमारो. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, all.